A very good morning to everyone. Now, dear student, in today's class, today's class is about what the plants and animals. So, in the previous class, we discussed the sixth chapter, and that chapter is about the friction. So, that chapter is completed, and I will send you the exercise for that already in a group. So, from there you can write it all the exercise and complete your work on time. Now, here this chapter means why we are study about this conservation of plants and animals. You know that this world is full of a variety of plants and animals. Everywhere you can find it the different varieties, different type of species of plants and animals. Some plants are flowering, some are the non-flowering plants. Some bear the seeds, and by this some are not bear the seeds, like bananas and many other type of varieties of plant is there. You also see the many varieties of animals. Some are the creeping animals, reptiles, mammals, birds, aves, aquatic animals, terrestrial animals, aerial animals. Many kind of the varieties. Means this world is full of water. The varieties of plants and animals. Means काफी विचित्र टाइप की आपकी प्रजातियां के आपके plants और animals आपको मिल जाएंगे. And this full varieties are of animals and plants that found or exist on Earth's surface, even that is called what biodiversity. Means even that भी इतनी species होगी कि ऐसे ऐसे भी places है जहाँ पर अभी तक पहुँचना नामुमकिन है. तो वो काफ़ी species ऐसी भी जो है जो अपने सामने अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है. लेकिन फिर भी बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो प्लांट्स की और एनिमल्स की हम पढ़ते हैं. हमारे साइंटिस्ट ने उनको उन पर रिसर्च करते हैं, उनकी खोज की है. So now we know that these plants and animals are the main resources for food and for us. We directly or indirectly we are depends on water, plants and animals. So by that the question arises that कि ऐसी क्या ना जरूरत आन पड़ी जिसके कारण हमें प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना है, कंजर्व करना है. कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, उनको सेव करना है. ऐसा क्या जरूरत आ गई? बिकॉज these are the main source of food for us, and we also getting the many different kinds of varieties of things. Either maybe it is you can say the medicines or other things, wood, other things. So means you can say that directly or indirectly we are depends on the plants and the animals, and these are the main source of food for us, and it also you can say the fulfill the many things that support our life, to favor our life. That's why it's necessary to conserve the water, this plants and animals. So this earth is full of natural resources, and we continually we use this all things unwisely. Very fast, very तेजी speedily we can use this all the resources that found in water, in different habitats or maybe exist on the earth's surface. But we need to water, we need to protect this all, and we need to use very wisely, very carefully we use these plants and animals, because they are support to us. They are the you can say that supportive part of our life. So therefore is a great need for water, for the ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें एनिमल्स और प्लांट को क्या करना है, बचा के रखना है. क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो जिस तरह से जंगल की जो डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई हो रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, स्पीसीज डे बाई डे रिड्यूस हो जाती है, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ. सो दैट्स वाई वी नीड टू वाटर कंजर्व द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. So first thing, what is the biodiversity? Biodiversity, you can say that this is the varieties of plants and animals. Varieties of plants and animals means the different forms of plants and animals that exist on the earth or in this universe, that is called what? Biodiversity. Bio means what? The organism, or diversity means variety, means biological form में. You can say that that different form varieties, yeah, you can say this diversity in the biological form. Diversity in a biological forms.
or this biological forms may be what? This plants and animals. And for this, for conservation of these plants and animals, on 22 May, this 22 May is celebrated as the International Biodiversity Day. Okay, 22 May. This 22 May is celebrated as a what? As a International Biodiversity Day. And 5 June, this 5th June is celebrated as a what? Environmental Day, World Environmental Day, Vishwa Paryavarana Divas. Okay, so this 5th June is celebrated as a World Environmental Day, and 22 May is celebrated as a International Biodiversity. Okay, so this biodiversity means what? The different forms of living forms of plants and animals that exist on the earth surface, that is called biodiversity. Okay, diversity in biological forms, either maybe it is in a animal form or maybe it is in a plant form. So okay, so now next then some the important terms we are discuss here, that is first is species. Now see everybody in your textbook page number 88, species, a group of the population which are capable of interbreeding with each other and reproduce a fertile or a visual viable offspring within their population is called a species. A species means it's a group of population, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. एक ऐसा कम्युनिटी, ऐसा ग्रुप, ऐसा पॉपुलेशन जो आपस में क्या करे, आपस में ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको अपन उस ग्रुप को कहेंगे स्पीसीज. सपोज दैट जो ऐसा एनिमल के अंदर जैसे काउ की स्पीसीज होगी, बफेलो की स्पीसीज होगी, गॉड हो गई, शिप हो गई, ह्यूमन बींग हो गई. सो दिस ऑल पॉपुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? स्पीसीज. एंड स्पीसीज मीन्स ह्यूमन बींग कैन बी live within the human being and it can be reproduce or breed their offspring within this community or within the human being, or cow within the cow. Okay, so this group or community or population is called what? A species. A member of a species have common characteristics. And why it is interbreed only within this group? Because they have the common characteristics. आप काऊ है तो काऊ को जो है ना आप बफेलो के साथ में या गॉड के साथ में इंटरब्रीड नहीं करा सकते, या हॉर्स के स्पीसीज के साथ में इंटरब्रीड नहीं करा, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस स्पीसीज हैव द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स व्हाई दे इंटरब्रीड विद इन देयर स्पीसीज ओनली. देन इकोसिस्टम. नेक्स्ट दिस द इकोसिस्टम, सेकंड वर्ड. Ecosystem means you can say that the interactions between the biotic and abiotic factor, or living and non-living things. यानी living और non-living things या biotic और abiotic factor के बीच में जो interaction है, that interaction that forms what? Ecosystem. So now see, all the living components, plants, animals and microorganisms along with the non-living components such as the climate, soil, river, delta, etc. are their interactions among themselves and with each other form an ecosystem. Because we are all animals and plants, what are these biological forms depends on what abiotic forms or non-living things. क्योंकि हमारे लाइफ के लिए सिर्फ बायोलॉजिकल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल या यू कैन से द एबायोटिक फॉर्म इज आल्सो नेसेसरी, लाइक वाटर, सनलाइट, सॉइल, climate, temperature. These are the non-biotic or you can say abiotic या non-living component of a ecosystem. So this ecosystem have the two components. Okay, it's have the two different components: living component and a non-living component. This living component is called what? Biotic factor, and this is called the abiotic factor.
For this example, this plants and animals. Plants, animals, microbes, this all. And for example, this soil, temperature, means sunlight, water, this etc. These all are the water abiotic factors. So the interaction between these all, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स वाटर दिस इकोसिस्टम. मींस यू कैन से दैट द इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इज फॉर्म वाटर इकोसिस्टम. नेक्स्ट दिस वाइल्ड लाइफ. थर्ड थिंग इज वाटर वाइल्ड लाइफ. Wild life means is a form of plants or animals which naturally occurring in a water, in a forest. यानी naturally occurring जो plants और animals है, means we are not rearing them or we are not take care artificially, means उसको घर पे नहीं पालते, वो naturally जो है वो ही जंगल में या forest में जो प्लांट या एनिमल्स उगाते हैं तो उनको अपन वाइल्ड लाइफ कहते हैं. तो ये वाइल्ड लाइफ जो है वो इट इज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, fauna and flora, means animals or animal form or plant form में. So the wild life, all the animals and the plants are living in their natural habitat independently. ये ना natural habitat में independently free, without any water, without any you can say the बाहर से किसी भी तरह से लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ओके, इस तरह से वो फ्री इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपने ही हैबिटेट में रह रहे, तो वो आपको वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड फॉर्म कहा जाएगा. आपने बहुत सारे जो है खेतों पे फसल उगा दी या बहुत सारे पशु अपने घर पे पाल लिए ना, गाय एनिमल्स, तो वो वाइल्ड नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो नेचुरली इंडिपेंडेंटली नहीं है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है. दिस आर नॉट इंडिपेंडेंटली फ्री. ओके, बट जो फ्री फॉर्म है दैट इज कॉल्ड वाटर वाइल्ड फॉर्म. Next is the flora and fauna. Flora and fauna means water, the plants and the animals. The plants and animals found in a particular area. Suppose that whatever the things that we see in our school campus, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे स्कूल कैंपस में, तो वो हो गया आपका फ्लोरा. और जितने भी एनिमल्स अपन देख रहे हैं यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड वाटर fauna. Okay, flora means it is related to plants and fauna means it's related to the water animals. So these are found in water, it's particular area. Okay, दूसरी आप जाओगे ना, just if you visit to the Mount Abu or you went to where है ना रेगिस्तान, हाँ जैसलमेर चले गए, तो वहाँ आपकी फ्लोरा और फूना भी चेंज हो गया. आप बेंगलोर चले गए, कोलकाता चले गए, कई और जगह चले गए ना, वेस्ट बंगाल चले गए, बंगाल पर टाइगर है, तो वो आपके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, तो वो वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया की फ्लोरा है ना फूना हो गई. ओके, तो हमारे लिए जैसे ना हमारे यहाँ पे ये बबूल है, ये एक हाँ रेगिस्तान में ना कैमल है, रेटल स्नैक्स है और दूसरे भी जो है, तो ये सब क्या हो गई यहाँ के फ्लोरा एंड फूना हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट द endemic species. Endemic species means the species, a group of population which is found only in a particular area. For example, एशियाटिक लॉयन. एशियाटिक लॉयन है जो सिर्फ ना गिर फॉरेस्ट में होता है, तो वो एक पर्टिकुलर उसी एरिया में होगा, है ना. रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल, तो वो बंगाल इन सुंदरवन डेल्टा वो इसी एरिया में रहेगा, तो वो एक इंडेमिक स्पीसीज हो गई. जस्ट लाइक कैमल इज ओनली फाउंड इन वेयर, इन राजस्थान, इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे ना जैसलमेर बाड़मेर उस साइड में, तो वो एक इंडेमिक डिजीज का स्पीसीज हो गई. ओके, endemic species means species of plants and animals that are found exclusively in a particular area are called endemic species. They are restricted to particular geographical regions, are not found naturally anywhere else. जैसे एशियाटिक लॉयन हो गए, वाइल्ड आर्स हो गए. वाइल्ड आर्स जो है उसके लिए कौन सा जो है गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वो है ना वाइल्ड डोंगी जिसको आर्स कहते हैं ना, उनके लिए है. टाइगर बंगाल टाइगर जो है उनके लिए है, जो सुंदरवन डेल्टा है तो वो उनके लिए सिर्फ पर्टिकुलर वो उसी टाइप में. जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया, है ना. तो ये क्या है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर
एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज के अलावा एंडेमिक डिजीजेस भी होती है। एंडेमिक डिजीजेस मीन्स वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होती है, उसको कहते हैं एंडेमिक डिजीज। बट पैंडेमिक मीन्स वो जो पूरे वर्ल्ड को जो अभी ना तांडव मचा रही है, जस्ट लाइक दिस नोवेल कोरोना ना, तो ये क्या है, ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक मीन्स ग्लोबली होती है, होल वर्ल्ड उससे सफ़र कर रहा है, तो वो पैंडेमिक हो गया। और इंडेमिक मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रेस्ट्रिक्ट होती है, दैट इज व्हाट इंडेमिक। नाउ नेक्स्ट द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स व्हाट द वाइज यूज एंड जुडिशियस यूज मीन्स बिल्कुल सोच समझ के उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट करना, बचाना, या जहाँ जरूरत है वहीं पे यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। एंड वी आर डिस्कसिंग हियर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। मीन्स हमें सोच समझ के एनिमल्स और प्लांट के प्रोडक्ट को यूज़ करना है। अदरवाइज ऐसे ही नेचुरली इफ़ वी आर यूज कंटिन्यूली, सो व्हाट हैपन, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब जो एनिमल्स और प्लांट्स वो ख़त्म हो जाएंगे एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग टू अस और अवर लाइफ। सो हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। अब इसका महत्व क्या है, क्यों हमें ये सब करना पड़ रहा है, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना बचाए ही हम अपनी लाइफ को आसानी से स्पेंड कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट अर्लियर, directly and indirectly we are depends on water, plants and animals, and they are the main source or supportive role they play supportive role for our life. Means we can exist on earth due to water, due to plants and animals. वो एक आपका फंडामेंटल सपोर्ट है, वो आप हट गया, कम हो गया तो आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं खतरे में है, वी आर इन अ डेंजर। ओके, सो इसका इंपॉर्टेंट जो है, महत्व जो है बायोडाइवर्सिटी का, कि ऑल द कंपोनेंट्स इन नेचर आर इंटरडिपेंडेंट। एज आई टोल्ड यू, सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, तो इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इफ देयर विल बी एनी टाइप ऑफ इम्बैलेंस, देन व्हाट हैपन, देन वी आर सफरिंग फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ वाटर, दिस नेचुरल कैलेमिटीज। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी, लैंडस्लाइड होने लगेगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा, फ्लडिंग होने लगेगी, बहुत सारे से अर्थक्वेक होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। ओके, सो दे आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स थ्रू द फूड चेन, फूड वेब, एंड वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फूड वेब एंड फूड चेन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे चेन में आ रहा है, फूड चेन में है, फूड वेब में है, किसी न किसी तरह से खाने के फॉर्म में हम उसके ऊपर डिपेंड है। जस्ट लाइक प्लांट्स है, तो प्लांट्स के ऊपर जो है हार्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, हार्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड है, कार्निवोर्स के ऊपर ओमनीवोर्स डिपेंड्स है। सो देयर विल बी वन लिंकेज और कनेक्टिव लिंकेज बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, और उसमें से कोई भी एक पार्ट यदि बीच में से डिस्टर्ब हो जाता है, इट मीन्स वाटर दिस होल चेन गेट स्पॉइल और डिस्टर्ब। यदि किसी भी मशीनरी पार्ट का, सपोज दैट आपका मोबाइल है ना, मोबाइल में से कोई भी एक पार्ट ही फंक्शन करना बंद करे, एक ही की आपका फंक्शन करना बंद कर दे, दैट मोबाइल इज व्हाट यूजलेस। मीन्स जो उसके सब कनेक्टिंग पार्ट्स है, दे फंक्शन वेरी वेल, सब बैलेंस होने चाहिए, सब प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए। सो द परफेक्ट हार्मोनी एंड बैलेंस इन दिस इंट्रैक्शन, तो इसके लिए सब में परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। Any disturbance to the living or non-living components of the ecosystem will causes a drastic adverse effect and other organisms. Therefore, to maintain the perfect balance, we have conserve our biodiversity. तो इस बैलेंस को बनाने के लिए we need to conserve this biodiversity. Means तभी जाके क्या होगा, एक चेन कंटिन्यू बन पाएगा, ओके, और बैलेंस नेचर में रह पाएगा। अदरवाइज व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस इम्बैलेंस वी आर फेसिंग मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि व्हाट आर द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस कारण से ना बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो मेन रीजन इज दैट व्हाट, पॉपुलेशन। वी आर वेरी सेल्फिश ना, ह्यूमन बींग जो है काफ़ी स्वार्थी है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए सब कुछ ये कर रहा है ना। हम अपने स्वार्थ के लिए तो हमने जंगल को काट के वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट बना काट रहे हैं ना, कॉलोनी बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, और यू कैन से दैट द बिग बिग मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फॉर वाई, फॉर ओनली अस। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर नेचुरल दिस ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से फॉर द प्लांट्स और एनिमल्स। सिर्फ हमारे पास के, हमारे पास में पैसा है, तो ह्यूमन बींग जो है इसका मेन कॉज है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो ह्यूमन बींग और ये पॉपुलेशन। ओके, सो सबसे फर्स्ट जो है
लॉस का सबसे बड़ा जो मैन फैक्टर है फॉर द लॉस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज कंटिन्यूअली दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन have what different types of needs, and to fulfill that needs we do और वी टेक ऑल दिस स्टेप्स, क्योंकि उनकी नीड्स को हमारी फैमिली में, यदि हमारी फैमिली 5 मेंबर्स है, उन 5 मेंबर्स की नीड को अपन पूरा करने की कोशिश करते, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, और नीड्स बढ़ेगी तो वी आर टेकिंग द सच टाइप ऑफ स्टेप्स टू व्हाट स्पॉइल दिस बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. So this is the reason for loss of biodiversity. Reason for loss of biodiversity. So first one is the growing population. Second, overgrazing. Okay, so these are the main different five causes for the loss of this biodiversity. First one, I already explained this all things, because growing population or due to the urbanization, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके कारण अपन क्या कर रहे हैं, वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड वी एस्टेब्लिश्ड बिग कॉलोनीज एंड what a shopping complex and shopping malls and industries and factories and schools and hospitals, like all these things artificially we build on that area by clearing. And we know that this forest is the what natural habitat for the plants and animals, and if we spoil that नेचुरल हैबिटेट मीन्स व्हाट, वी आर स्पॉइलिंग दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि उनका नेचुरली आप घर रहने की किसी भी इंसान के लिए या किसी भी एनिमल के लिए या है ना सामाजिक जीव के लिए आप यदि उसके घर को डिस्ट्रॉय कर लेंगे तो क्या हो गया, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो वी आर डिस्ट्रॉइंग हियर व्हाट द नेचुरल हैबिटेट इन फॉर्म ऑफ दिस फॉरेस्ट, है ना. उसको क्लियर करके ना क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे, बड़े बड़े मॉल बना रहे, तो वो एक कारण है किसका, फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड थिंग्स ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मीन्स लैंड जो फील्ड पड़ा है उस पर क्या करते हैं, जानवर कैटल्स को ना फ्री छोड़ देते चढ़ने के लिए, तो उनके जो हूप्स होते हैं, हूप्स के कारण क्या होता है, देयर विल बी एक वाटर इरोजन ऑफ द सॉइल, मीन्स सॉइल की कटिंग होती रहती है. सो दिस आर दैट इज ऑल्सो मेन कॉज फॉर वाटर सॉइल इरोजन. एंड सॉइल इरोजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरली वहाँ से क्या हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. तो दैट इज ऑल्सो एक मेन कॉज फॉर वाटर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स, अपन पानी को रोकते हैं, है ना, और रिजर्वर्स स्टोर करते हैं, तो ये भी एक कारण है कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होती है, उससे हाईली इफेक्टेड होती है और उसका लॉस होने लगता है. वो एरिया पानी से गिर जाता है और नेचुरली वो एनिमल्स वो जहाँ पे रह रहे थे वो बेचारे फिर क्या करते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं, या फिर उनको कहीं और नेचुरली हैबिटेट ढूंढना पड़ता है, और इन दैट वे दे आर वाटर lost their life in this struggle.
Okay. Then acid rain means is water, the result of human activities. We are using many fertilizer, pesticides, chemicals for every instant, है ना. प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ यूज़ किए जा रहे हैं. एंड ड्यू टू वाटर, एंड वी ऑल्सो यूज़ वाटर, दैट्स अ फ्यूल, है ना. डीजल और पेट्रोल और कोल यूज़ करें, जिसके कारण ये धुआं हो रहा है, और धुएं से फिर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है उसके कारण क्या होता है, दैट इज द मेन कॉज फॉर द एसिड रेन. एंड एसिड रेन हैव harmful effects on plants and animals, and in that way the plants and animals die or spoil. Then next the hunting. This is the big reason to in today's market. Okay, you know that अपने स्मगलिंग देखे हुए ना, एनिमल पार्ट्स की स्मगलिंग. एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं, हाइड्स होते हैं, उनके क्लेव्स होते हैं, हाँ. एनिमल्स एलिफेंट के जैसे दांत, टस्क है, एवरी यूज़ होते हैं, तो उनकी क्या होती है, स्मगलिंग होती है ना. तो अंडर दिस इंटरनेशनल मार्केट हाई कॉस्ट पे इनको सेल किया जाता है. तो ये कॉमर्शियली उनकी क्या होती है, हंटिंग होती है फॉर द कॉमर्शियल पर्पस. ओके, तो उनको क्या करते हैं, वो लोग मार्केट ना, इंटरनेशनल मार्केट में उनके पार्ट्स बेचते हैं. So this is all about this today's class. If you have any doubt, you can ask me, and then next we discuss in a next class. Okay, thank you. Have a nice day.